बहुत बार स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब आंसर राइटिंग की बात आती है, दे फेल टू कन्वर्ट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इनटू ए वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर। व्हाई? क्यों होता है ऐसा? दिस इज व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस ज्योग्राफी ऑप्शनल पीवाईक्यू सीरीज, जहां पर I will take some important aspects of PYQs over the last few years, and I will try to help you to write answers in a structured way on the topics. Hello everyone, this is Venkatesh, your faculty for Geography Optional, and I would be handling these sessions regularly on this channel. Now, you see my dear friends, you see this question here, areal differentiation. There is a concept called as areal differentiation in perspectives of human geography. उस टॉपिक के ऊपर they're asking the question on has created a strong justification, that too a strong theoretical justification. This is the question, theoretical justification for the study of regions and regional geography. Comment. एक क्वेश्चन है, whenever जब भी आप एक क्वेश्चन देखते हैं ना, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्या क्या टॉपिक्स पॉइंट समझ में आया था, हाउ टू ऑर्गेनाइज दोस पॉइंट्स एंड हाउ टू शो दोस पॉइंट्स इन ए प्रायोरिटी वे इन द एग्जाम। सो पहले चीज आपको समझ में आना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो उस टॉपिक के ऊपर आपको क्या क्या समझ में आया था, क्या क्या याद आया था, पूरा एक स्ट्रक्चर स्केलेटन बनाना पड़ेगा। उसके बाद कन्वर्टिंग दैट स्केलेटन इनटू ए वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर। सो जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आपको अच्छा होगा over a period of time. Now, you see here, they are asking areal differentiation. Usually हम लोग आंसर लिखते वक्त क्या करते हैं ना, हमको एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में जो आता है वो लिखते हैं, तब मार्क्स नहीं आएंगे। आपको जो पूछा गया था वो आंसर करना पड़ेगा। आपको जो ऑलरेडी पता है उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है, राइट? सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, जो पूछा गया उसके ऊपर सवाल दो। तो एरियल डिफरेंशिएशन का जो भी नॉलेज है ना, वो पूरा एक स्पेक्ट्रम में लगाओ। उससे कनेक्ट करने के लिए हाउ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रीजनल एंड रीजनल ज्योग्राफी, ओनली दोज पॉइंट्स पिक एंड चूज, वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट? सो दैट शुड बी द मेन मोटिव. नाउ whenever you are writing an answer, you all know the first thing, introduction, body, conclusion. Introduction के पॉइंट में क्या हो सकते हैं? You can define the significance of areal differentiation, or you can straight away talk about what is areal differentiation. Introduction, you can talk about areal differentiation. Areal differentiation of how it is linked with using physical and geographical phenomena of a region and connecting them and trying to understand the spatial relations among them. So you can define them. So you can define the areal differentiation as per the Richard Hartstone in his book The Nature of Geography. In his book The Nature of Geography in 1939. ये थोड़ा वैल्यू एडिशन आपको करना पड़ेगा। सो एरियल डिफरेंशिएशन को डेफिनेशन से चालू कर सकते हैं और डिफाइन करते वक्त ना एज पर रिचर्ड हार्टस्टोन इन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, हमेशा ज्योग्राफी का ऑथर्स, उनका बुक्स, वो आपको आंसर में दिखना चाहिए ताकि आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा। दिस इज ए मस्ट एंड शुड. सो डेफिनेशन, राइट? So we can also talk about the areal differentiation phenomena refers to how casually linked phenomena is there. That also you can mention. So you can mention in any other way the two things, how the physical and human geography are used by in the study of a region and how we are trying to connect them and ascertain that. That is what we can say so. And in the process, the second aspect is connecting para. आपको वो डेफिनेशन में टू वर्ड्स यूज किया गया था, एक होता है स्पेशली प्रॉक्सिमेट, दूसरा होता है
casually linked phenomena, right? So the spatially proximate aspects of a region, right, casually linked phenomena which we are helping into integration has provided a strong justification for regional approach. Simple यार. Aerial मतलब क्या है? An area, space, differentiation, variations. तो फिर the way physical and human geography aspects or geographical phenomena are distributed in space are studied in a way in a region by integrating them. वो होता है aerial differentiation. So we try to understand why geographical phenomena varies across regions, right? Why geographical phenomena varies across regions. वही होता है differentiation. एरिया का differences. वेस्टर्न घाट से लेके गए तो फिर ईस्टर्न घाट्स में फर्क क्या है? वाई वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आर नॉट सिमिलर? दो आइलैंड्स है इंडिया का, मेजर आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑन वन साइड, लक्षद्वीप ऑन अनदर साइड. दोनों इतना फर्क क्यों है? बिकॉज देयर क्लाइमेट, there might be similarities. No two regions would be having similarities in topography, climate, soil and everything. कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो चेंज होगा. उस एक फैक्टर के कारण सारे इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा. वही है एरियल डिफरेंशिएशन, राइट? यू टेक पेनिनसुलर इंडिया, महाराष्ट्र ही देख लीजिए. महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट्स और महाराष्ट्र का विदर्भ प्लेट्यू अलग क्यों है? हाउ द एग्रीकल्चर, हाउ क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट सारे अलग क्यों हैं? बिकॉज द लिंकेजेस हैव वेरीड. वो लिंकेजेस पढ़ना ही है एरियल डिफरेंशिएशन, राइट? देन थोड़ा आपको यहां पर ना थोड़ा स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरियल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. ये होता है कोरोलॉजी एंड कोरोग्राफी. कोरोलॉजी, कोरोग्राफी. The major aspects of Hartstone का aerial differentiation is focusing on कोरोलॉजी. रीजनल ज्योग्राफी का अप्रोच ना पहले से था, स्ट्राबो के जमाने में भी था, ग्रीक और रोमन पीरियड से ही कोरियोग्राफी है. कोरियोग्राफी इज डिस्क्राइबिंग द अर्थ. कोरो मतलब क्या है? रीजन. कोरो मतलब होता है रीजन. ग्राफी का मतलब डिस्क्राइब. ज्योग्राफी का मतलब क्या है? जियो, अर्थ. ग्राफी, डिस्क्राइब, स्टडी. तो हम लोग एक रीजन को सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन वो रीजन को डिस्क्राइब करने के बाद उसको इंटीग्रेट सिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं. वो है कोरोलॉजी. कोरोलॉजी इज व्हाट? रीजन, कोरो प्लस लॉजी, डिस्क्राइब and not describe now. Logy it is. Analyze, synthesize. So you analyze a region of the broadly. You simply describe here. तो हार्टस्टोन का कॉन्सेप्ट ऐसा डेवलप हुआ था बिकॉज ही वॉज फेड अप विथ रीजनल ज्योग्राफी लार्जली बिकमिंग कोरियोग्राफी अंटिल देन. सो ही हैज फोकस्ड ऑन कोरोलॉजी. तो ये है हार्टस्टोन का कंट्रीब्यूशन. हाँ, यहां पर आपको यह भी समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्चुअली इट वॉज स्ट्रेट अवे टेकन फ्रॉम आल्फ्रेड हेटनर, right? So he has taken straight away from the concept of Alfred Hettner. Using this base, you can also connect with one line. ये सारे चीज आप एग्जाम में थोड़ी ना लिखेंगे. Richard Hartstone has contributed to the regional geographical approach based on emphasizing over chorology over chorography within brackets straight away taken from Alfred Hettner's viewpoints. तब एक दूसरा ऑर्डर का वैल्यू एडिशन भी आप दे रहे हैं. ये कनेक्टिंग पैरा में आप लोग यूज कर सकते हैं दिस वन, और यू कैन टॉक अबाउट हेटनर स्ट्रेट अवे कोरोलॉजी. उसके बाद हाउ इट इज ए स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन. स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल justification for regions.
पहला, एक रीजन में फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के एलिमेंट्स को एक ज्योग्राफिकल स्पेस में एनालाइज करके हाउ आर देयर वैरिड समझना। तो इसमें पहले चीज क्या करते हैं हम लोग, एक एक रीजन को अलग कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर यू डूइंग, वी आर आइडेंटिफाइंग द रीजन्स एज यूनिक वंस। तो 3 स्टेप होता है एरियल डिफरेंशिएशन में। द फर्स्ट वन इज रीजनलाइजेशन। रीजनलाइजेशन के हिसाब से यहां पर स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन में आप लोग यू कैन स्टार्ट अवे टॉकिंग अबाउट dividing the world, dividing the geographical space into regions. So you can say how areal differentiation will be helping in dividing the geographical space. हाँ, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा geographical into regions. No two regions are similar करके ये चीज आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा, once you divide the regions and once you can formulate the regions based on homogeneity, regions based on homogeneity मतलब cultural regions, or else you can say climatic regions, homogeneously whatever they are similar, वो हम लोग एक रीजन करके इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे हिल एरिया डेवलपमेंट। वाई, देखिए अगर आपको उत्तराखंड जाने के बाद उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर ज्यादा है, तो फिर उसी सिमिलर क्लाइमेट सिमिलर एरियाज के ऊपर वहां पर फॉरेस्ट फायर्स कैसा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कैन वी नॉट शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? वही है ज्योग्राफी का सिंथेसिस, राइट। क्लाइमेटिक रीजन्स हम लोग पढ़ के क्या करते हैं, मेडिटेरियन रीजन के बारे में, कहां पर कैलिफोर्निया में, स्पेन, इटली, वहां पर सिमिलर क्लाइमेट रहेंगे, अगर वहां पर फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, व्हाट आर द लेसन्स यू कैन लर्न आउट ऑफ दैट, यू कैन इंप्लीमेंट हियर, राइट। इट्स ऑल मेंट फॉर पॉलिसी प्लानिंग because climatic regions will give you a general order of a region. That is what you need to identify. Regions को homogeneity के हिसाब से you can divide them into climatic regions. You can divide it into what you say, agriculture regions. Any kind of a regions you can divide them. एक है। दूसरा, it will help in regional synthesis. ज्योग्राफी का मकसद यही है टू हेल्प इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग द सिंथेसिस ऑफ ए रीजन। इन टर्म्स ऑफ द सिंथेसिस क्या करते हैं, सी इमेजिन यू टेक समथिंग कॉल्ड एज सम ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स, राइट। क्या कर सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, यू कैन डिवाइड देम। फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट क्लाइमेट, थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफिक एलिमेंट्स, क्लाइमेट, सॉइल, यू कैन टॉक अबाउट टोपोग्राफी। क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी से आपको एक रीजन में एग्रीकल्चर कैसा है, वो एग्रीकल्चर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, और वहाँ का डेवलपमेंट ओवरऑल कैसे हुआ, और वहाँ का पॉपुलेशन कैसे है, ये सारी चीज पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट यू डिवाइड इनटू region 1 and region 2. Now you get multiple aspects about each thing. Western Ghats में, Deccan Plateau में, Eastern Ghats में, like that you can club about how is the climate, soil, topography, agriculture, economy, population, and you can divide a synthesis factor. एक रीजन अलग क्यों है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, थोड़ा ह्यूमिड नहीं है, सेमी ह्यूमिड टू ड्राई है। सॉइल, अलुवियल सॉइल्स, द हिमालयन रिवर्स जो भी अलुवियल सॉइल को वहां पर लेके आ रहे थे, राइट। टोपोग्राफी, फ्लैट एरिया एंड द रिवर्स आर मूविंग, वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर, फर्टाइल सॉइल्स, प्लेजेंट वाटर रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफीनेस, एंड डिसेंट इनफ क्लाइमेट, एग्रीकल्चर वेरी प्रॉस्परस। वहां पर ह्यूमन एग्रीकल्चर प्रॉस्परस के कारण वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, यू हैव सीन हाउ द इकोनॉमी हैज बिकम मच सोफिस्टिकेटेड,
एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड ऑल, इसके कारण रूरल इकोनॉमी कैसे डेवलप हुआ, इसीलिए वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी ज्यादा डेंस है पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर. कैन वी टॉक अबाउट ऑल दिस फैक्टर्स? डेफिनेटली यस. तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रीजन को सारे फैक्टर्स सिंथेसाइज नहीं कर रहे. व्हाई पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी आर हैविंग मोर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? यू कैन कंपेयर. देन दूसरा क्वेश्चन, बिहार, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल को कंपेयर करो. वहां पर भी क्लाइमेट थोड़ा ठीक ठाक ही है, वहां पर भी सॉइल ठीक ठाक ही है, बिकॉज अलुवियल सॉइल्स आर देयर. वहां पर भी फ्लैट एरिया नहीं है, ये प्लेन एरिया है. इट्स then why the agriculture, economy, human geography are varying? Because the elements here have slightly varied. तो ये कह लिया जाता है कि रीजनल ज्योग्राफिकल अप्रोच. सो दैट इज व्हाट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेटनर एंड द रिचर्ड हार्टस्टोन्स एरियल डिफरेंशिएशन. हेटनर का आइडिया से पूरा सीधा कॉपी किया था अल्फ्रेड हेटनर का व्यूज रिचर्ड हार्टस्टोन ने. तो डेफिनेटली दीज टू अदर्स नेम्स हैज टू बी मेंशन्ड इन द आंसर. दिस इज व्हाट इज रीजनल सिंथेसिस. आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं. वाई डू फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन डेवलपमेंट इज पुअर इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ द इक्वेटोरियल अफ्रीकन रीजन्स? सीधा क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, जिसके कारण आपका वहां पर इंटेंस लीचिंग होता है बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल, जिसके कारण ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन लीच्ड अवे. तब जाके लैटराइट सॉइल्स बनाता उधर. लैटराइट सॉइल्स को एक बात कहते हैं ना कि देयर आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग. सो देयर आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग. बिकॉज ऑफ दैट देयर एग्रीकल्चर इज ए बिट मोर एग्री इज नॉट फेवरेबल, जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ उतना, और इसलिए वो अंडर डेवलपमेंट रह गया. तो हम लोग वाई सर्टेन रीजन्स ऑफ अफ्रीका आर अंडर डेवलप्ड, we are giving you some factors and we are connecting them, linking them, synthesizing them and we are integrating. ये चीज आपको लिखना पड़ेगा. अभी एग्जाम्पल जो दिया था मैं केस स्टडी, एक दो के एग्जाम्पल्स, आप वो लिखना पड़ेगा उसको. देन दूसरा, कंपैरेटिव एनालिसिस. ऑल दिस फैक्टर्स के कारण क्या हुआ था? We are able to compare the regions from one region to another, compare and understand why geographical phenomena are unique to a region. This is the main aspect. यही है क्रक्स ऑफ द ज्योग्राफिकल आंसर इस क्वेश्चन के लिए. उसके बाद आप दूसरे कर सकते हैं. सर एग्जाम्पल, helped in reducing the dichotomies of geography. For example, according to this concept, ये क्या कह रहे हैं? They are using systematic geography that is nothing but the physical geography which we tend to study as a tool in their regional approach. So according to Richard Hardstone, region should be the prime basis of geographical studies because we are integrating the laws and the aspects which we got through systematic geography to study the regions. मतलब एक रीजन में टोपोग्राफी कैसा है, वो किस रीजन का जियोमॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स, जियोलॉजी, रॉक्स एंड ऑल वट एवर यू स्टडी, वो कैसा हुआ, क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे इंप्लीमेंट हुआ, ये सारे चीज पढ़ के इंटीग्रेट रीजन को कर रहे हैं. So we are ultimately using systematic geography for the geographical development. In the process, हमको इसको यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग? We have removed the kind of challenges which we had in terms of various dichotomies. So this has also helped reduce dichotomies and made region as a primary agent of study. So this made what? Region as a prime पॉइंट ऑफ स्टडी इन ज्योग्राफी. ये फैक्टर्स आपको लिखना पड़ेगा. इसके थ्रू देन यू कैन हेल्प इन हाउ इट इज हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल इन प्लानिंग रीजन्स. सच एरियल डिफरेंशिएशन विल हेल्प इन प्लानिंग रीजन्स.
आज के जमाने में आप लोग इंडिया का लिख सकते हैं डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, you can talk about border area development program, you can talk about island area development program, all these are nothing but regional approach. ये चीज आप लिख सकते हैं. This is where your contribution would be immensely benefited, right? That's what you can do. See, one more thing. Whenever I have done some value additions, what you can do is exam में जब आप आंसर लिखते हैं ना, अगर आपको कोई भी वैल्यू एडिशन लगा जो रिलेटेड है लेकिन फ्लो को रिदम को ब्रेक कर रहा है, जैसा एक टेबल बना दो, यहां पर आपने वहां पर वो कोरोलॉजी कोरियोग्राफी का डिफरेंशिएशन दिखा दो, वैल्यू एडिशन हो रहा है, राइट? और इसके थ्रू वेन एवर यू आर ट्राइंग टू राइट आंसर्स इन दिस बॉक्स फॉर्मेट अलॉन्ग विथ योर फ्लो, आप एग्जामिनर को बोल रहे हैं, hey, देखो इधर, I am giving you one more value addition point, and that value addition point का उतना वैल्यू भी रहना चाहिए. ये चीज आप लिख सकते हैं, right? These are all the factors, and after this factor, then ये थ्रू एग्जाम्पल्स में हम लोग केस स्टडी लिखे थे, ये सारे फैक्टर्स लिखे थे. नाउ कंक्लूजन. कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं? सीधा आप कनेक्टिंग पैरा का कंक्लूजन एंड दिस यू कैन राइट इन दिस वे. Despite the contributions, areal differentiation was criticized by Schaeffer, which led to the growth of quantitative revolutions. However, post-QR, there emerged a revival of regional geography. Right? So that is what you can identify. There emerged a revival of regional geography. So after 1970s, regional geography was revived. That also you can say in the some of the contribution. या सीधा आप समरी लिख सकते हैं. By focusing on integrating the regional approach, integration of regional studies, their aerial differentiations helped in developing a strong theoretical justification for regional geography. तो हम लोग समराइज कर दिए. सो समराइज इसलिए भी कंक्लूजन लिख सकते. इससे पहले थोड़ा क्यूआर का और पोस्ट क्यूआर हाउ रीजनल ज्योग्राफी वाज रीएमर्ज्ड, वो सिंथेसाइज करके एक लाइन में लिख दो, राइट? आपको आंसर राइटिंग में प्रिसिशन भी आना चाहिए. These are at the points. Before I end the session with respect to a very important value addition point, another value addition point, let me remind you that I am starting the geography optional batch in the upcoming days. This batch, you can see in the textbook, you can simply type geography optional by Venkatesh Shimani, my name, Venkatesh. You will get that link. You can simply use the code here. View all plans. You can apply my name as a coupon. My name is Venkatesh. So let me apply and show you. Right? You can apply, and then if needed, we are providing you at 14,000 rupees. 14,000 rupees. You will not find it much cheaper than that anywhere. It is just at 14,000. And if needed, you can also use the EMI plans. You can divide this by 4 months. You can also pay in the 4 months. ये ऑफर बहुत ही कुछ दिन रहेगा 14,000 का, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो यूज माई कोड. रिमेंबर, you will get that price only with respect to when you use my code Venkatesh. ये याद रखना, राइट? सो लास्ट वन, एज आई टोल्ड यू, तो जब आप आंसर राइट लिखते हैं ना, हमेशा you try to make it sure that there is always something which is a differential factor.
यहां पर डिफरेंशियल फैक्टर के ऊपर मैं क्या फोकस किया था, मे बी इस टॉपिक के ऊपर स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट। उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को what did I have focused upon? I have focused upon the authors Richard Harstone and also with respect to the Hettner. I have focused on case study. There was also a tabular regional synthesis concept I have shown you. These are the differential factors. हमेशा कभी कभी कुछ क्वेश्चन के ऊपर डायग्राम, कुछ क्वेश्चंस का ये सारे चीज आप लिखते रहेंगे ना, वैल्यू एडिशन के कारण आपका मार्क्स सीधा 220, 230, 240 से सीधा 280, 290, 300 तक चला जाएगा। तब जाके प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को एज ए सक्सेसफुल कैंडिडेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज माय अप्रोच। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। एंड वन मोर वैल्यू एडिशन टू यू। Now that you have known the answer for this question, next time whenever a question asks about areal differentiation, अगर उस टॉपिक के ऊपर ये स्टेटमेंट बैठता है, नाउ यूज दिस पी बाय क्यू स्टेटमेंट एज योर पॉइंट इन योर अदर आंसर्स। जहां पर भी एरियल डिफरेंशिएशन के ऊपर आप लिख सकते हैं ना, यू कैन यूज दिस एज ए स्टेटमेंट। I hope you all have understood it, enjoyed it. Do follow the sessions for more such kind of updates on geography, optional answer writing. Thank you all of you. Take care. Keep smiling. Keep learning. Thank you.